Hello students, how are you? In this week, I will discuss about the chapter 4. Actually, this is a revision video. Again, I will discuss about the chapter 4. Okay, the name of the chapter is Factors and Multiples. Okay. In this chapter, we have to learn about this. First is what is factor, then divisibility rule, then even and odd number, prime number and composite number, twin prime and co-prime. Okay, now starting with the first one, factor. See the name of the chapter is factors and multiples. So, first what is factor? See, if any number is exactly divisible by another number, then that number is called the factors of the first number. Like 6 divided by 2. So 2 is a factor of 6. You can say that 2 is a factor of 6 because by 2 we can exactly divide the 6. हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 से 6 को डिवाइड कर सकते हैं, isn't it? So 2 is the factor of 6. Understood? फैक्टर किसको कहते हैं? जिस नंबर से आप लोग पूरा डिवाइड कर सकते हो वही नंबर क्या है आप लोगों का फैक्टर है. Now divisibility rule. We all know that at least from 2 to 6 we have to know divisibility at least up to 6. ठीक है, आप लोगों को बुक्स में तो 10 तक ही मिल जाएगा, 10 11 तक है, लेकिन आप लोग पहले 2 से 6 तक क्लियर करो. अगर 2 से 6 तक आप लोगों को क्लियर हो जाएगा तो 7, 8, 9, 10, 11 एकदम आसान है. ठीक है, तो मैंने तो ये सब ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल कैसे, 2 का रूल क्या है, 3 का रूल क्या है. ठीक है, फिर से मैं आज आप लोगों को डिविजिबिलिटी रूल एक बार दिखा दूंगा. नेक्स्ट पॉइंट इज इवन एंड ऑड नंबर. इवन एंड ऑड नंबर, तो आप लोगों को मालूम है इवन व्हाट इज इवन नंबर? The number which is exactly divisible by 2 is a odd number. अब जिस नंबर अगर कोई नंबर अगर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो ये क्या होगा? odd number. If that number is not divisible by 2, then that number will be odd number. Next, 4, prime number and composite number. Now, what is prime number? When you divide, if any number has only 2 factors, if any number has only 2 factors, first is 1 and second one is number itself. Okay, that number we call it a prime number. That means if the number is divisible by the number itself, then that number will be prime number. और सिर्फ अपने नंबर से ही डिवाइड होगा, बाकी दूसरा नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? प्राइम नंबर कहेंगे. ठीक है, तो प्राइम नंबर का कितना फैक्टर्स होता है? ओनली 2 फैक्टर्स. फर्स्ट इज 1 and another is the number itself. So that kind of number we call it a prime number. Now what is composite number? If any number has more than 2 factors, कोई भी नंबर का अगर 2 से ज्यादा फैक्टर्स हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे? उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे. ठीक है. Now what is twin prime? Twin prime is if you take two consecutive prime numbers and the difference between that 2 consecutive prime numbers is only 2, then that pair is called a twin prime. जैसे 2 is a prime number, 3 is a prime number,
5 is a prime number, 7 is a prime number, 11 is a prime number, 13 is a prime number. Now see, 2 and 3 difference कितना है? Only 1. 2 and 3 के if you subtract 2 from 3, the difference is only 1. 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस. 5 और 7 में डिफरेंस कितना नंबर का है? 2 का है. 7 और 11 में डिफरेंस कितना का है? 4. 11 एंड 13 में 2 का डिफरेंस. अभी देखो जिस पेयर में 3 और 5 इन दोनों में क्या है? डिफरेंस कितना है? ओनली 2. लेकिन 2 और 3 में देखो कितना है? डिफरेंस ओनली 1. और इधर देखो 7 और 11 के बीच 4 का डिफरेंस. तो when the difference between the two consecutive prime numbers is only 2, अगर लगातार दो प्राइम नंबर के बीच अगर 2 का डिफरेंस हुआ तो इस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम कहेंगे. ठीक है. नाउ व्हाट इज को प्राइम? को प्राइम इज when the difference the factors of any two numbers, the common factors of the two number is only 1. जैसे आप लोग ले लो 4 का, पहले आप लोगों ने 4 का फैक्टर्स निकाला. ठीक है. फिर आप लोगों ने 7 का या 11 का 13 का कोई भी नंबर का आप लोगों ने फैक्टर्स निकाला. ठीक है. इन दोनों फैक्टर्स के बीच ओनली 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर. अगर सिर्फ 1 ही उन लोगों का कॉमन फैक्टर है, बाकी कोई भी नंबर एक दूसरे से मैच नहीं हो रहा है, सिर्फ 1 is the only common factor, then that kind of number is called co-prime number. Okay. जैसे देख लो, I am giving you one example. Okay, let's erase it. जैसे ले लो 6 का फैक्टर्स क्या क्या है? 6 का क्या क्या फैक्टर है? 1 into 6, 2 into 3, 6, 3 into 2, 6, 6 into 1, 6. तो क्या क्या फैक्टर्स निकला? 1 है, 2 है, 3 है, 6 है. These are the factors of 6. Now, if we find the factors of, let's take 7. So, 1 into 7 equal to 7. 2 से 7 डिवाइड नहीं होता है. 2 into 3 6, 2 into 4 8. 7 तो नहीं मिलता है. Again 3 into 2 6, 3 into 3 9. 7 नहीं है, 4 भी नहीं है. 4 into 2 8 हो जाता है. 5 भी नहीं है. 5 into 2 कितना हो जाता है? 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10. 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. 7 तो नहीं है, तो 7 नेक्स्ट क्या किससे जाएगा? 7 1 जा 7. तो 7 का फैक्टर्स क्या क्या है? 1 and 7. Now see, now compare these two factors. Here 1 2 3 and 6, and here only 1 and 7. Now see, 1 is the only common factors between them. बाकी देखो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है क्या? नहीं है. यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है क्या? नहीं है. यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है क्या? नहीं है. यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है क्या? नहीं है. सिर्फ कौन सा मैच है? सिर्फ इधर 1 है और यहाँ पे भी 1 है. So 1 is the only common factor between them. So that kind of number is called a co-prime number. Okay. Now I will discuss about the divisibility rule. D of 2. D means divisibility. Okay, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ. ठीक है. D for
divisibility of 2. Now divisibility 2 says if the digit in the ones place is either 0, 2, 4, 6 or 8. Zero, 2, 4, 6, 8. If the digit in the ones place has either 0 or 2 or 4 or 6 or 8, then that number will be divisible by 2. Like this, see, I am giving you one example. $274. क्या इस नंबर 2 से डिवाइड होगा? नाउ सी द डिजिटिविटी वंस प्लेस. वंस प्लेस में कौन सा नंबर है? 4. क्या इस लिस्ट में हम लोग का 4 है कि नहीं? वंस प्लेस में कौन सा नंबर होना चाहिए? आइदर 0 और 2 और 4 और 6 और 8. अगर इनमें से अगर कोई भी नंबर अगर वंस प्लेस में हुआ तो हम लोग क्या कहेंगे? दैट नंबर विल बी डिविजिबल बाय 2. अगर इधर से और ले लो 387, तो इस वंस प्लेस में कौन सा है? 7 है. तो 7 क्या है? 0, 2, 4, 6 में है? नहीं है. सो दैट नंबर विल नॉट बी divisible by 2. Okay. D of 3. That means divisibility of 3. ठीक है. Rule of divisibility 3 is that if the sum of the number is divisible by 3, then the whole number will be divisible by 3. That means क्या है? 417. Will this number will be divisible by 3? क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होगा? आपको क्या करना पड़ेगा? डिविजिबिलिटी 3 का रूल लगाना पड़ेगा. ठीक है. रूल क्या है? सम ऑफ द नंबर. दैट मींस 4, 1, 7 है ना, तो आपस में प्लस कर दो. जैसे 4 + 1 + 7. ठीक है. जो नंबर दिया गया जैसे 4, 1, 7, 417, इसको आपस में प्लस कर दो. 4 + 1 + 7. तो 4 + 1 कितना हुआ? 5. 5 + 7 कितना हुआ? 12. 5 + 7 कितना हुआ? 12. आपस में प्लस कर दो, कितना मिला? 12. अभी आप बताओ 12 को क्या हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं? 12 को हाँ कर सकते हैं. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. Isn't it? So that means अगर सम करने के बाद जो रिजल्ट लिखना, सब नंबर में आपस में सम करने के बाद रिजल्ट कितना मिला? 12 मिला. इस नंबर को आपस में सम करने के बाद कितना मिला? 12 मिला. अगर ये रिजल्ट जो निकला 12, अगर ये नंबर अगर 3 से डिवाइड जाता है, दैट मीन्स ये पूरा नंबर आप लोगों का 3 से डिवाइड जाएगा. ठीक है. और एक एग्जांपल ले लो. $632. क्या ये नंबर 3 से डिवाइड जाएगा? कैसा करना है? 632. सो राइट 6 + 3 + 2. 6 + 3 + 2. आपस में प्लस कर दो. रिजल्ट क्या निकला? देखो 6 + 3 is 9. 9 + 2 is 11. कितना निकला? आपस में प्लस करने के बाद कितना मिला? 11 मिला. नाउ सी
क्या 11 3 का 3 से डिवाइड जाएगा? काउंट कर लो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। 11 तो नहीं है, दैट मीन्स क्या 3 11 से डिवाइड 11 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, इजंट इट? 3 से डिवाइड नहीं होगा 11। दैट मीन्स ये पूरा जो नंबर है ये भी आप लोगों का 3 से डिवाइड नहीं जाएगा, 3 से डिवाइड नहीं जाएगा। सम करने का, आपस में सम करने के बाद जो रिजल्ट निकला, अगर वही नंबर अगर 3 से डिवाइड जाता है तो पूरा नंबर डिवाइड जाएगा, अगर नहीं जाता है तो ये पूरा नंबर डिवाइड नहीं जाएगा। ठीक है? नाउ डी ऑफ 4, divisibility of 4, divisibility of 4, 4 करो। divisibility 4 का रूल क्या है? If the digit in the ones place and tens place together divided by 4, then the whole number will be divisible by 4. That means, take example, 728, 728, ठीक है? अभी देखो ये नंबर क्या हम लोग 4 से डिवाइड जाएगा, कैसे करना है? डिजिट इन दी वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस को एक साथ कर लो, वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस ये दो है, इन दोनों को एक साथ कर लो। अभी देखो ये क्या निकला नंबर 28, अभी क्या हो गया नंबर 28। अभी चेक करो 4 का टेबल में 28 क्या 4 से डिवाइड जाएगा कि नहीं जाएगा, चेक कर लो। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। दैट मींस क्या होगा? ये 4 से हम लोग 28 को डिवाइड कर सकते हैं, इजंट इट? सो दैट मींस 4 से हम लोग ये डिवाइड जाएगा, दैट मींस ये पूरा जो नंबर है ये आप लोगों का 728 जो पूरा नंबर है ये आप लोगों का 4 से डिवाइड जाएगा। और एक एग्जांपल ले लीजिए आप, $350। क्या ये नंबर 4 से डिवाइड, डिविजिबिलिटी 4 से डिवाइड जाएगा? कैसे चेक करना है? वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस को एक साथ कर लो। ये वंस प्लेस है आप लोगों का, ये टेंस प्लेस है, एक साथ कर लो। नंबर क्या निकला 15। नाउ 15 से अभी 4 का टेबल देखो 15 आता है कि नहीं? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। 15 तो नहीं है, 4 4 जा कितना होता है 16 होता है। दैट मींस ये 15 जो नंबर है ये 4 से डिवाइड नहीं जाएगा, तो दैट मींस ये जो पूरा नंबर है ये भी 4 से नहीं जाएगा, ठीक है? Now divisibility of 5. Divisibility of 5 is very easy. If the digit in the ones place, if the digit in the ones place is either 0 or 5, then the number will be divisible. The whole number will be divisible by 5. That means कोई भी नंबर ले लो, $625, 530, 734,
ठीक है, now see डिजिट इन दी वंस प्लेस में क्या होना चाहिए, आइदर 0 और 5. If the digit in the ones place is either 0 or 5, then the whole number will be divisible by 5. अभी चेक करो, ये इसका क्या है, ये वंस प्लेस है, तो वंस प्लेस में क्या है, 5 है. तो हम लोग को मालूम है वंस प्लेस में क्या होना चाहिए, आइदर 0 और 5. दैट मींस क्या होगा, ये नंबर 5 से डिवाइड जाएगा. ठीक है, ये क्या है, देखो 0 है लास्ट में, तो 0 भी होने से हो जाएगा, 5 से डिवाइड. लेकिन इसमें क्या है, देखो 4 है, वन स्प्लिट में क्या है, 4 है. हम लोग क्या चाहिए, वन स्प्लिट में आइदर 0 और 5. 4 होने से तो नहीं होगा, तो ये नहीं जाएगा 5 से, ये 5 से नहीं जाएगा. क्रॉस क्रॉस. ओके, divisibility of 6. Divisibility of 6. Now divisibility of 6 is that if the number satisfy both the conditions of 2 and 3, 2 का divisibility of 2 and divisibility of 3 का जो conditions है, दोनों अगर सेटिस्फाई करता है किसी नंबर में, तब जाके वही नंबर 6 से भी डिवाइड जाएगा आपको. ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं. 100 198. ठीक है, 198. ये नंबर क्या 6 से डिवाइड जाएगा, कैसे चेक करना है, क्या बोला मैंने, you have to satisfy both the conditions of divisibility of 2 and divisibility of 3. okay, so divisibility of 2 में क्या है, वन स्पेस में क्या होना चाहिए, आइदर 0, 2, 4, 6 और 8. ये 2 का रूल है, तो देखो अभी 8 है, तो क्या हुआ, 2 का जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई किया. तो 3 का क्या कंडीशन था, रूल 3 का क्या कंडीशन था, सम ऑफ द नंबर. जैसे 198 है तो क्या होगा, 1 प्लस 9 प्लस 8. ये डिविजिबिलिटी 3 का ट्रिक है. तो 1 प्लस 9 कितना, 10. 10 प्लस 8 कितना, 18. क्या हम लोग 3 से 18 को डिवाइड कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं. 3 6 जा 18, 3 6 जा 18. 6 मिलेगा. इफ यू डिवाइड 18 by 3 विल गेट 6. दैट मींस क्या, दिस नंबर satisfy both the conditions of 2 and 3. conditions of 2 and 3, 2 का कंडीशन सेटिस्फाई क्या, क्योंकि डिजिट इन द वन प्लेस में क्या है, 8 है, और कंडीशन 3 क्या है, sum of the number. if sum of the number is divisible by 3, then the whole number will be divisible by 3. तो sum of the number कितना होता है, 18 होता है. 18 को क्या हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं, दैट मींस ये पूरा नंबर भी हम लोग 3 से डिवाइड कर सकते हैं. तो दिस नंबर सेटिस्फाई बोथ द कंडीशंस ऑफ 2 and 3. दैट मींस दिस नंबर इज आल्सो divided by, we'll do divide by 6. okay, we can able to divide this number by 6. ओके, 2 और 3 का कंडीशन दोनों का सेटिस्फाई हो गया किसी नंबर पे, तो हम लोग इसी नंबर को हम लोग क्या करेंगे,
6 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ले लो, जैसे ले लो 8, ठीक है। 8 का फैक्टर्स निकालो तो कितना निकलेगा, 1 इंटू 8 इक्वल टू 8, 2 इंटू 4 8, ठीक से तो नहीं जाएगा 4 से, 4 इंटू 2 इज 8 एंड 8 इंटू 1 इज, so factors of 8 क्या क्या है, factors of 8 में क्या क्या है, 1 2 4 and 8, 1 2 4 and 8। अभी देखो टोटल कितना फैक्टर्स आएगा, कितना फैक्टर्स आएगा, 1 2 3 4, 4 फैक्टर्स, isn't it? So the number that has more than 2 factors, okay, more than 2 factors, that number we call it a composite number, ठीक है। अभी देखो एक प्राइम नंबर ले लो, प्राइम नंबर 13 ले लिया, 13, तो 13 को हम किससे कर पाएंगे, सिर्फ 1 से करेंगे, 1 1 इंटू 13 इक्वल टू 13, 13 को क्या, 13 से प्राइम नंबर तो कोई दूसरा कोई नंबर से नहीं जाएगा, 13 इंटू 1 13, तो 13 का फैक्टर्स क्या किया है, सिर्फ 1 एंड 13, ठीक है। तो प्राइम नंबर में कितना फैक्टर्स निकला, सिर्फ 2, तो यह हमेशा याद रखना, प्राइम नंबर में हमेशा कितना फैक्टर्स होता है, 2 फैक्टर्स होता है, एक है 1 और दूसरा है खुद का जो नंबर है, ठीक है, द नंबर इटसेल्फ। जिस नंबर में प्राइम नंबर में कितना फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स, इसलिए क्या कहते हैं, इसको प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर में कितना फैक्टर्स है, 2 फैक्टर्स। अगर कोई भी नंबर का 2 से ज्यादा फैक्टर्स आया, 3 4 5 6, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर, ओके। थैंक यू।